Okay, so today Ampere circuit law. So Ampere circuit law says the dot product of magnetic field with element dl. This is a hypothetical surface, hypothetical line which is enclosing a current carrying conductor. We call it Amperian loop. इसको क्या बोलते हैं? Amperian loop. ये Amperian loop करंट को enclose कर रहा है. उसका डॉट प्रोडक्ट B and dl is equal to mu naught times current enclosed by the closed path. Right? इसको क्या बोलते हैं? Ampere circuital law. हम डायरेक्ट इसका प्रूफ भी कर सकते हैं. राइट? प्रूफ के लिए क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमने dl दैट इज लेंथ को ड्रॉ किया है. कौन सा लेंथ? एम्पीरियन लूप. इमेजिनरी लूप है, मैंने पहले ही बताया. उसी डायरेक्शन में इसको हमने ड्रॉ किया. ओके, यदि उसी डायरेक्शन में ड्रॉ किया तो इस केस के लिए बी dl विल बी मैक्सिमम cos 0 डिग्री. यदि बी dl मैक्सिमम होगा तो देखो क्या होगा, LHS बी dl मैक्सिमम. राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इंटीग्रेशन b dl which is equals to magnetic field constant. एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगा. राइट? यदि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करोगे dl को. मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स dl का इंटीग्रेशन होगा 2 pi r, where r is the radius. अब मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का वैल्यू होता है म्यू नॉट I by 2 pi r टाइम्स 2 pi r कैंसल्स. b डॉट dl कितना मिला? म्यू नॉट टाइम्स. तो इसी फॉर्मूला से, इसी लॉ से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे एंड जितने भी आगे अपकमिंग कैलकुलेशंस होगा वी विल बी सॉल्विंग इट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है? होप एम्पियर सर्किटल लॉ इज क्लियर. तो बायट एंड सबार्ट्स लॉ का एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन वी विल बी कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट carrying wire, current carrying straight wire, and the wire is very very long. Wire is very very long. याद रखो, right? So we are considering a wire of length very long, infinitely long. Suppose this wire carries current I, then as per right hand thumb rule, if I place right hand in this way, then thumb points out in the direction of current. So magnetic field is formed in the form of concentric circle in the given direction, which I am showing. Right? This is exactly in accordance with right hand thumb rule. Correct? Okay. So since this is capable of producing magnetic field, we are required to calculate magnetic field somewhere here. This is our observation point where we wish to find out the field. Correct? Anti-clockwise. Now, in anti-clockwise sense, magnetic field is formed. Along the same direction, we are drawing a hypothetical line which encloses this current. Are you getting me? We are drawing a hypothetical line which encloses current carrying wire. If it is done this way, then we can apply Ampere circuital law, which says line integral of magnetic field is equal to mu naught times current enclosed by the closed path. How much current is enclosed? I current is enclosed. Right? And the radius of this Amperian loop is R. Right? So out here how many loops are there? Two. One is Amperian loop and the other one is magnetic field, which is also looping the wire. So B dot dl बन गया mu naught times I. Right? अब देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन B dl cos 0 डिग्री होगा. Dot product gives you cos theta and theta is 0 degree because theta here represents angle between B and dl. The direction in which B is formed, along the same direction we are drawing Amperian loop.
they are parallel to each other. So angle will be 0 degree. In that case, B dl must be mu naught times I. Now magnetic field is constant everywhere. Why? Because the distance is fixed. It is a circular one. So distance is fixed, current is fixed, length is fixed, everything is fixed. So we call magnetic field is constant, right? Matlab, I mean to say total length is fixed, not dl, right? So if I take magnetic field out, because constants cannot be integrated, we will be integrating dl, and that will be mu naught times I. So B times dl. What will be the integration for dl? 2 pi r is mu naught times how much? Current. Therefore, the value of magnetic field comes out to be mu naught I divided by 2 pi. This is the value of magnetic field produced by a current carrying wire whose length is infinity. This type of calculation we can do using Wyatt and Savart's law, but that derivation will be little lengthy. Have you seen a spring? If it carries a current, that becomes a solenoid. Solenoid is a spring-like structure. एक वायर को कोइलिंग कर देते हैं तो वो वायर सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है. इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है. कोइलिंग कर देने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ओके, अब उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? हमें फ्यूचर में एसी करंट से डील करना है, राइट? हम लोग का लाइफ एसी करंट से रिलेटेड है, राइट? डीसी करंट्स इज वेरी एक्सपेंसिव. सो हम लोग डीसी करंट यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एसी करंट. तो एसी करंट में यदि तुम सोलेनोइड्स को यूज करोगे तो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जो पावर लॉस नहीं करवाता है. एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसके चलते पावर का लॉस बहुत कम हो. आइडियली नहीं होता है, लेकिन रियलिटी मिनिमाइज हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे ट्यूबलाइट में चोक कोयल सुना है? जब ट्यूब होता है, उस ट्यूब के फ्रेम में एक छोटा सा डस्टर की तरह कुछ होता है ना. अभी तो नहीं आता है. अभी भी होता है, लेकिन वो अंदर होता है. अभी तो लेटेस्ट फ्रेम होता है ना, वही लेटेस्ट फ्रेम होता है ना, तो उसके अंदर होता है. लेकिन आजकल का जो ट्यूब्स आते हैं वो तो एलईडी रिलेटेड आता है. तो एलईडी तो ऐसे ही उसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, तो उसमें चोक कोयल का जरूरत नहीं है. लेकिन जो पहले फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होता था, आज के डेट में भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स तुम खरीदने जाओगे तो मिलेगा, लेकिन उसका फ्रेम पतला सा होता है, राइट? उसके अंदर ही चोक कोयल होता है. बिना चोक कोयल का तो वो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा. पहले अलग होता था, ठीक है, वो डस्टर की तरह कुछ चिपकाया रहता था. उसके साथ एक और सिलेंड्रिकल एक फिगर होता था जिसको हम स्टार्टर बोलते थे. स्टार्टर नहीं होने से ट्यूबलाइट ऑन तो किया, उसके बाद खाली ब्लिंक होता था, जलता ही नहीं था. स्टार्टर डाल देने के बाद में वो ग्लो हो जाता था, और वो ग्लो परमानेंट रहता था, राइट? स्टार्टर नहीं डालोगे तो ब्लिंक खाली करेगा ट्यूबलाइट. आज के जमाना में वो टोटल चीज है, लेकिन थोड़ा टेक्नोलॉजी हाई हो गया, सब चीज अंदर है, राइट? ऐसा. तो सोलेनोइड क्या है सबको समझ में आ गया. तो अब यदि सोलेनोइड समझ में आ गया तो इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये तो निकालना पड़ेगा. तो एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, राइट? तो सोलेनोइड विल बी समवट लाइक दिस. ऐसा दिखेगा सोलेनोइड. यहां से ऐसे लाइनिंग निकलेगा ना, ऐसे, राइट? मतलब मैं ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड को मैं कैसे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इस सोलेनोइड को मैं कैसे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. इस सोलेनोइड को मैं दिखा रहा हूँ एज इफ मैंने सोलेनोइड किसे काट दिया है. एक पार्ट खाली दिख रहा है तुम्हें. स्प्रिंग तो ऐसे बनते जाएगा ना. एक पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ, इसीलिए एक जगह से देखो वायर निकल रहा है, दूसरा में एंटर कर रहा है. पीछे वाला पार्ट आई एम नॉट शोइंग, जस्ट आई एम शोइंग द आगे वाला पार्ट, राइट? तो अब सोचो कि ये वायर्स है, राइट? दीज आर दी वायर्स. यदि ये वायर है तो करंट किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा. मैंने बना दिया किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो मैंने पहले ही बताया कि राइट हैंड थंब रूल दोनों ही में एप्लीकेबल है. लाइक यदि थंब पॉइंट आउट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो
obviously curled finger points out in the direction of magnetic field and vice versa. यदि ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट. इस सोलेनोइड को देखो, ये सोलेनोइड में वायर ऐसे घूमते जा रहा है, मतलब करंट विल बी दिस वन. कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है? देखो इस तरफ जा रहा है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, याद रखना. यदि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऑब्वियसली ऊपर जाएगा. अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लाइंस ऑफ फोर्सेस से इमेजिन करते हैं, मतलब सोचते हैं कि देयर आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट. तो यदि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोजली स्पेस्ड, यदि लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, in that area we call magnetic field to be stronger. ठीक है, स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होगा? जहाँ पे टू लाइंस ऑफ फोर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. लेकिन यदि लाइंस ऑफ फोर्स बहुत दूर है तो उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड को क्या मानते हैं? वीकर. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो, यदि मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, राइट. अब तुम देखो, इन दोनों लाइंस को देखो, दे आर वेरी क्लोज. लेकिन इन दोनों लाइंस को देखो, दे आर वेरी फार. तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्गर कौन सा है? अंदर वाला. तो अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है उस वैल्यू को हम एकदम स्ट्रॉन्गर मानेंगे और उसके कंपैरिजन ये वैल्यू को ऑलमोस्ट जीरो मानेंगे. कितना मानेंगे? जीरो. तो हम ये मानेंगे कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो है. रियलिटी में जीरो नहीं होता, प्रैक्टिकली जीरो है, क्योंकि मैं जब डिटेक्शन करने जा रहा हूं तो बाहर के कंपैरिजन अंदर फील्ड बहुत स्ट्रांग है. तो मैं बाहर से इंटरेस्टेड नहीं, मैं वहां पे इंटरेस्टेड हूं जहां पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, राइट. तो स्ट्रॉन्गर कहां पे? अंदर. तो मुझे फील्ड कहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा? अंदर, राइट. सो आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड. तो मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस चूज करो. ये एक्सिस हो गया, मतलब एक्सिस में फील्ड स्ट्रॉन्गर है, करेक्ट. तो यदि एक्सिस में फील्ड स्ट्रॉन्गर है, फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो तुम क्या करोगे? यू आर गोइंग टू ड्रॉ एन एम्पिरियन लूप विच इनक्लोजेस द करंट कैरिंग वायर. तो ये एम्पिरियन लूप कैसा होना चाहिए? कैन यू जस्ट, एज पर सिमेट्री आई एम गोइंग टू टेक अ रेक्टेंगुलर लूप. दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप, एम्पिरियन लूप, वी कॉल इट एम्पिरियन लूप. ये लूप का लेंथ उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा सोलेनोइड का लेंथ है. सोलेनोइड का लेंथ कितना है? L. तो ये लेंथ भी कितना है? L. मैंने छोटा दिखाया, डजंट मीन्स कि इट इज स्मॉल, राइट. ओके. सो द डायरेक्शन इन विच आई एम लूपिंग दिस इज दिस. ऐसे जा रहा हूं, करेक्ट. आई विल जस्ट नेम इट A, B, C. Now here I can apply Ampere circuital law. Can I? Yes. So if I apply Ampere circuital law, I'll be getting B dot dl is mu naught times total current enclosed with a closed path. This closed path is enclosing not only I, it is enclosing Ni currents. क्योंकि देखो इसमें कितना करंट है? I. तो इसमें कितना है? I. ये दोनों में कितना है? 2I, 3I, 4I, 5I, 6I. तो कितना है? n टाइम्स I. क्लियर और नॉट? ये बन जाएगा n टाइम्स I. कैन आई कॉल n एज नंबर ऑफ टर्न्स? यस, आई कैन कॉल इट नंबर ऑफ टर्न्स. तो ये हो गया. अब देखो, ये तो क्लोज्ड पाथ है. क्लोज्ड का मतलब A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से A आया, क्लोज्ड हो गया. मैं इसको क्या स्प्लिट कर सकता हूँ अलग अलग पाथ में, लाइक दिस. कैन आई कॉल इट B डॉट dl फॉर द पाथ AB. A से B तक खाली. मैंने क्लोज का साइन नहीं लगाया क्योंकि मैंने तोड़ दिया. आई हैव जस्ट ओपनड इट, राइट. प्लस B डॉट dl BC, B dot dl CD, B dot dl DA or AD. We are just following the path, so I am going as DA times mu naught times Ni. Now let's check for this. B dl. What is the direction in which magnetic field is formed? Along the thumb.
and in which direction I am drawing the loop? Along the thumb only. So what will be the value of theta? 0 degree. So if it is 0 degree, I will be getting B dl cos 0 degree AB path के लिए. Now B dot dl. Magnetic field is this way, but we are looping it downwards, so the angle is 90. So in that case, we get B dl cos 90 degree for the path BC. For B dl, this is 180 degree. Angle is 180 degree. But just now I said outside the solenoid magnetic field is 0, right? So I will call it 0. And here I will be writing outside B is 0. Correct? I am giving you the explanation also. Plus B dot dl, dA. What will be the angle? 90 again. Actually it's 270, but the value will be as per 90 degree, right? So this will be B dl cos 90 must be equal to mu naught times Ni. This value is maximum. Plus 0, 0, 0, mu naught times कितना? 90 वाला भी 0 हो गया. Cos 90 is how much? 0. Cos 90 is 0, outside field is 0, cos 90 is 0. 270 is also 0. You can just ये हो गया. अब हो गया B को कांस्टेंट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो फील्ड है यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है. Along the axis the value of field is same, right? यदि सेम है तो B इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी B dl is equal to mu naught times कितना? Ni. Now if you integrate this, what will you get? Length of the solenoid, not 2 pi r, length of the solenoid. So here B times L is mu naught times कितना? Ni. Can I call B is equal to mu naught times Ni by L? This is number of turns per unit length. Can I write it small ni? Very small n is number of turns per unit length. So this is the value of magnetic field due to solenoid. ये हो गया टोरॉइड. Now इस टोरॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, which is inside. यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे outside and within the core. यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, राइट? एक बार देखते हैं. पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एट अ डिस्टेंस r. यदि फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तो एक एम्पीरियन लूप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये एम्पीरियन लूप है, राइट? तो तुम अप्लाई करो एम्पियर सर्किटल लॉ. B डॉट dl इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज विद द क्लोज पाथ. ये जो पाथ है टोटल कितना करंट इनक्लोज कर रहा है? तो हम बोलते हैं 0. क्यों बोलो? क्यों बोलो? क्योंकि ये टोरॉइड है तो ऑब्वियसली ये ऐसे सर्कल जा रहा है ना, तो एक नीचे करंट जा रहा है तो एक ऊपर भी तो करंट जा रहा है. दोनों का नेट तो कैंसलेशन होगा, राइट? आर यू गेटिंग मी? ऐसे घूम रहा है ना सर्कल. यदि ऐसे सर्कल घूम रहा है तो एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर भी तो आ रहा है. तो हमने वो बायट एंड सबार्ट्स लॉ में किया था ना कि ऑल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर बीइंग कैंसल्ड, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बीइंग एडेड. वैसे कुछ सिचुएशन होगा जिसके चलते हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज 0, राइट? तो यहाँ पे फील्ड करंट ही 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0. सो याद करोगे कि आउटसाइड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रिक्टली 0. सोलेनोइड में हमने अज्यूम किया 0, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली 0. क्लियर है? क्लियर है? ओके. अब देखो इनसाइड करते हैं, ठीक है? नंबर ए ये हमने किया आउटसाइड. नंबर बी इनसाइड. इनसाइड का मतलब मैं यहाँ पे निकालूंगा फील्ड. ये एम्पीरियन लूप है. आर इज अ वेरिएबल, तो ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है. डोंट गेट कंफ्यूज. आर इज अ वेरिएबल. हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आर इज ग्रेटर देन R2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इज लेस देन R1. ठीक है ना? अभी समझ में आया? ओके. इनसाइड again you apply B dot dl mu naught times total current. How much is the current enclosed? यहाँ पे तो परफेक्टली 0 है. ये तो डायरेक्शन के चलते नहीं 0 ही है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है बाहर और हम लोग अंदर लूप बना रहे हैं.
राइट, तो बुड़बक काम कर रहे हैं, ये जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सो अंदर भी जीरो, बाहर भी जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हो सकता है? लेट्स कैलकुलेट, लेट्स। तो नंबर सी में हम कैलकुलेट करेंगे अंदर, दैट इज विद इन द कोर, ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर। तो यहाँ पे विद इन द कोर टॉपिक होगा विद इन द कोर एंड आर इज ग्रेटर देन R1 लेस देन R2, राइट, बीच में मतलब। तो इफ यू अप्लाई B dot dl part is mu naught times, how much is the current enclosed? N times I, right? N times I, because there are number of turns, this carries current I, so total 2I. Likewise, N times I. The direction in which magnetic field is formed, in the same direction we are looping it, in that BDL, cos 0 degree, so I am not writing, mu naught B times, मैंने बोला जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना है ना, उसी डायरेक्शन में एम्पीरियन लूप बना रहा हूँ। तो एम्पीरियन लूप दैट इज L एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B, दोनों पैरेलल हो गया, तो एंगल इज 0 डिग्री। तो B डॉट dl विल बी B dl cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, सो हम जस्ट राइटिंग B dl इज म्यू नॉट टाइम्स Ni, म्यू नॉट टाइम्स dl का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 पाई r ना, सर्कल ही तो है, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स Ni, तो B बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स Ni बाई 2 पाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। So here we are going to discuss, or we are going to solve a problem where in a very thick wire we are going to calculate magnetic field inside, outside, as well as on the surface of the wire. Like for an example, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। For an example, if I take this as a wire, very thick, right? So obviously current is flowing through this wire. So outside there will be some magnetic field. Now our point of interest is there any field inside it? And how the value of magnetic field varies, changes as we go from center to surface. इसका सेंटर यहाँ पे, जिसको हम एक्सिस बोलेंगे, राइट। उस एक्सिस से जब बाहर निकलोगे तो फील्ड कैसे वैरी करेगा, दैट वी आर इंटरेस्टेड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, मैंने पहले बोला ये थ्योरी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू। सर ये वायर का बोल रहे हो, सोलिनॉइड का कि टोरॉइड का? ये वायर का, स्ट्रेट वायर, वायर अगर स्ट्रेट वायर, यस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिक वायर, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग एज अ थ्योरी, आई एम नॉट गिविंग यू अ क्वेश्चन, राइट। एक थ्योरी जैसा अब एग्जाम में आएगा, तुम्हें समझना है एंड यू हैव टू आंसर इट। तो देखो ये वो वायर है, वेरी थिक, राइट, वेरी थिक। दिस इज इट्स एक्सिस, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स एक्सिस। ऑब्वियसली करंट इज फ्लोइंग, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? आई यहाँ पे खाली फ्लो थोड़ी कर रहे हैं, पूरा सरफेस में फ्लो कर रहा है, करेक्ट। और ऐसे में तो रेजिस्टेंस भी कम होता है, you know that resistance is inversely proportional to area, more the area less is the resistance, so current will be more. So here also we are interested to calculate magnetic field in 3 different positions. Position number 1 outside, position number 2 inside, position number 3 on the surface. So we will be measuring radius of this wire. Radius of this wire is A, cross sectional radius is A, and this distance at which we are calculating field is R. So here magnetic field will be this way, right? जो भी हो, मोटा हो पतला हो, वायर तो वायर है, रूल तो सेम लगेगा। दिस इज द करंट डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। तो आउटसाइड फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, उसी डायरेक्शन में मैंने लूपिंग किया, राइट। तो एक चीज देखो, यदि ये ऐसा हम कर सकते हैं तो व्हाट वी डू इज
we will be calculating number A outside wire, right? Outside wire का मतलब R is greater than A, सही है? एम्पियर सर्किट का लॉ अप्लाई करो, B डॉट इज म्यू नॉट टाइम्स क्या करोगे I, करेक्ट है? हियर वी डोंट हैव टू कंसीडर नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि एक सिंगल वायर है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, सेम रीजंस, म्यू नॉट टाइम्स कितना I, तो B टाइम्स 2 पाई A, म्यू नॉट टाइम्स I, सॉरी R होगा ना, तो B is equal to mu naught times I by 2 pi R. So here magnetic field is inversely proportional to distance. So as we go away from the rod, the value of magnetic field is going to reduce in this proportion, in this ratio. Am I clear with this? ये तो हमने फर्स्ट में भी किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेम रिजल्ट, यू कैन चेक, राइट? सेकंड जो हम लोग केस बी करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो हम केस बी डिस्कसंगा इनसाइड, देख लो, देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इनसाइड कितना हो, राइट? इनसाइड नॉट सेम थिंग, टोटली डिफरेंट। इनसाइड में क्या होगा एक बार देखो, इनसाइड का मतलब हमें ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एम्पिरियन लूप, इसका रेडियस आर, तो नंबर बी में इनसाइड कर रहे हैं, इनसाइड में R इज लेस देन ए। अब यदि एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करोगे तो B डॉट DL मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। हाउ मच इज द करंट इनक्लोज्ड बाय दिस स्मॉलर पाथ? सेम करंट या कम? कम करंट, क्योंकि करंट ये पूरा बॉडी में फ्लो हो रहा था ना, तुम जो छोटा सा बॉडी का कितना करंट है बोल के सोच रहे हो, तो करंट तो डिफरेंट ही होगा ना। सोचो hollow from inside. नॉट हॉलो, सॉलिड, सॉलिड। हॉलो होता तब तो खाली सरफेस में करंट फ्लो करता, हवा में थोड़ी करंट, राइट? Up to zero. Are you getting me what I am trying to ask? So current will be same or different? Different. So can I call it I dash? Different current. Now how to calculate I dash? We need the value of I dash in terms of I. कैसे? तो यहाँ पे हम something called density का concept लेते हैं, ठीक है? एंड करंट को हम सरफेस डेंसिटी से मेजर करते हैं, समथिंग कॉल्ड करंट डेंसिटी, एंड करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। एक चीज देखो, करंट ऐसे निकल रहा था, राइट? ये करंट है, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया विल ऑलवेज बी सेम। तुम ये पूरा लो या इतना लो, ये पूरा लो या खाली इतना पार्ट लो, करंट का डेंसिटी सेम रहेगा। जो तुम्हारे बॉटल में पानी है, 1 लीटर पानी है, उस पानी का डेंसिटी कितना है? रो मान लिया मैंने, वैल्यू किसी किसी को पता नहीं है, रो मान लेते हैं। तो यदि बॉटल में 1 लीटर पानी का डेंसिटी रो है, तो ऊपर जो टैंक रखा है 2000 लीटर का, उसका डेंसिटी कितना है? रो ही होगा, चेंजेस होगा डेंसिटी। तो मोटा वायर में जितना डेंसिटी होगा, पतला वायर में भी क्या होगा डेंसिटी? सेम। हम डेंसिटी कॉन्सेप्ट से आई कैलकुलेट करेंगे, यही ट्रिक है इस प्रॉब्लम का। और क्या करेंगे हम? करेंगे करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। हाउ मच इज द ओरिजिनल एरिया? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर हो ना, ए इज द क्रॉस सेक्शनल रेडियस, must be equal to I dash by pi r square. Is this clear or not? Current density. Current is flowing per unit area. It's not flowing per unit volume. That is why areal density we are talking about. We are not considering volume density. क्योंकि यदि मैं डेंसिटी पूछूं, तुम लोग का आंसर होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही तो सिखाया गया, यही रटाया गया है, ठीक है? यही तो प्रॉब्लम है ना, हम लोग रटते हैं। यदि मैं पूछूं किसी से व्हाट इज डेंसिटी, रिप्लाई विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम। आई डिडंट आस्क यू मास डेंसिटी, डिड आई आस्क यू मास डेंसिटी? नो, आई आस्क्ड यू डेंसिटी। If someone asks you define density, you should say density is the how dense a particular material is, how heavy a particular material is.
That is the measure of density. Like 1 kg cotton, 1 kg iron. Which one is more denser? Which one is more heavier? Iron. Iron is more heavier. Heavier is same thing, sir. No. 1 kg cotton and 1 kg. Material type it differs. Material type it's different. Okay. Mass is same. But लेकिन feeling heavier कौन सा ज्यादा होगा? Feeling thought Right. iron. उसका होगा. क्योंकि कॉटन का एरिया ज्यादा होता है, कॉटन का एरिया ज्यादा होने के कारण आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्ट कर देता है, राइट? तो लॉस ऑफ वेट मोर होता है और आयरन के केस में नहीं होता है. लेकिन यदि हम उस 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन का ब्लॉक को देखेंगे तो हिंदी में बोलते हैं ना सख्त, ठोस, वो कौन ज्यादा होगा? आयरन. क्यों? क्योंकि छोटा एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. दैट इज डेंसिटी. मैंने यहाँ पे मास डेंसिटी का बात नहीं किया है, राइट? वैसे डेंसिटी इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट. यहाँ पे मैं मास डेंसिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, करंट डेंसिटी का बात कर रहा हूँ. करंट कैसे फ्लो करता है? वॉल्यूम वाइज नहीं, एरिया वाइज. एक पर्टिकुलर एरिया से निकलता है, जैसे पानी निकलता है पाइप का एक पर्टिकुलर एंड से निकलता है. चारों तरफ से थोड़ी पानी निकलता है. निकलेगा? नहीं निकलेगा. एक ही जगह से निकलेगा. क्या करंट भी वैसे निकलता है? नो, एक ही जगह से निकलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगा. यदि वायर है तो वायर का सरफेस होते 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 तो निकलेगा. ऐसे थोड़े फैल रहा है करंट? फैलता है? नहीं. 3 डायमेंशनली जाता है? नहीं. तो वॉल्यूम कैसे आएगा? 2 डायमेंशनली जाता है. तो ये क्या मानना पड़ेगा? एरिया डेंसिटी. ठीक है. तो डेंसिटी का मतलब समथिंग पर यूनिट लेंथ, समथिंग पर यूनिट एरिया, समथिंग पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी. अब वो समथिंग यदि मास हो गया तो मास डेंसिटी बोलेंगे. समथिंग यदि चार्ज हो गया, चार्ज डेंसिटी. समथिंग यदि करंट हो गया, करंट डेंसिटी. क्लियर? राइट? यहाँ पे मैंने डेंसिटी लिया. तो डेंसिटी बिगर वायर का और डेंसिटी पतला वायर का सेम है. तो यहाँ पे पाई गेट्स कैंसल्ड आउट. हमें आई डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा r स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स आई. इसमें बैक पुट कर दो, मिलेगा b dl cos 0 डिग्री इज म्यू नॉट टाइम्स r स्क्वायर ए स्क्वायर टाइम्स कितना? i. तो ये मिला b टाइम्स, आई एम इंटीग्रेटिंग इट डायरेक्टली. dl का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई r, राइट? must be equal to r square by a square times mu naught times I. r cancels, तो b मिला mu naught times I divided by a square 2 pi a square times r. I भी है, ये तो I. ये टोटल क्या है बोलो तो कांस्टेंट है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा. प्रीवियस केस में क्या हुआ था? इनवर्सली. अभी क्या हुआ? डायरेक्टली. मतलब सेंटर पे फील्ड कितना होना चाहिए? 0. 0 ना. देखो सेंटर पे r का वैल्यू क्या होगा? 0. पुट करो, b विल बी 0. तो यहाँ पे फील्ड कितना है? 0. यहाँ पे बढ़ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे और बढ़ेगा और बढ़ेगा. यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि r का वैल्यू मैक्सिमम क्या है? a है ना. अंदर वाला बात हो रहा है, अंदर वाला. तो अंदर वाला का r मैक्सिमम कितना होगा? a. तो यदि हम ऑन सरफेस कैलकुलेट करेंगे तो r बिकम्स a. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स आई ए बाई 2 पाई ए स्क्वायर. कैंसल्स. कितना मिला? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए. इसमें से कोई वेरिएबल है? ए इज अ कांस्टेंट. वायर का रेडियस है, वो कैसे वेरिएबल? एवरीथिंग इज व्हाट? कांस्टेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस में क्या है? कांस्टेंट. सरफेस के अंदर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, सरफेस के बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा. चेक करो केस 1. बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, राइट? तो बाहर भी जाओगे तो फील्ड डिक्रीजेस, अंदर भी जाओगे तो फील्ड डिक्रीजेस. तो फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे? सरफेस पे. मैक्सिमम कहाँ पे है? सरफेस पे. इज द लॉजिक क्लियर? The current flow is AC or DC? This is obviously we are taking a variable current because if it is a constant current then field उतना vary नहीं करेगा. variable current हम लोग ले रहे हैं. DC लो, AC लो. AC लोगे तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तो ऑल्टरनेटिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, झमेला होगा. वी आर टेकिंग DC current, राइट? ये पार्ट समझ में आया?
तो यदि ये पार्ट समझ में आया तो इसका एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं ना, और अच्छे से समझ में आएगा। दिस साइड आर प्लॉट करते हैं, दिस साइड बी प्लॉट करते हैं। तो बताओ ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इस सिलेंडर का, इस वायर का सेंटर पॉइंट, एक्सेस पॉइंट। फील्ड कितना है? 0। यस, 0। जैसे जैसे बाहर जाओगे फील्ड बढ़ेगा। यहाँ भी 0 था ना, बढ़ेगा सर। बाहर निकल रहे हो क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये सरफेस हो गया मैक्सिमम। तो यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा था, कैसे बढ़ेगा? व्हाट विल बी द फिगर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये तो सरफेस है, सरफेस के बाहर निकलोगे तो मैंने मिटा दिया पहले वाला केस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट? ये होगा ना, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो क्या होता है? डिक्रीजेस। सो इट विल बी समवhat लाइक दिस। दिस विल बी माइनस very steep. या पोटेंशियल में भी करते हैं ना, स्टीपर ग्राफ होता है, आर स्क्वायर का थोड़ा सा स्लोप। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीशन ऑफ एम्पियर सर्किटल